برین ڈرین کے حوالے سے، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے. پاکستان میں کسی نے بزنس کرنا ہے تو وہ مشکل ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ ٹیکسیشن کا نظام ایسا ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، سہولیات اس طرح سے موجود نہیں ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. نمبر آف پیپل ہیں جو کہ 16 ایئر کا ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو نہ تو پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے مطلب ان کے لیے ویلکمنگ کرتا ہے، اور نہ ہی ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پر کوئی ایسی اپرچونٹیز موجود ہیں. پھر آخر ہوتا کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جانا اور وہاں سے پیسے کمانا پاکستانیوں کے لیے ایک بہت آسان اور معاشی طور پر سٹیبلٹی لانے کے لیے ایک طریقہ سمجھ لیا گیا ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے نمبر آف پیپل جو کہ باہر جا رہے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب 2025 کی رپورٹ آئی ہے جی بیورو آف امیگریشن کی جانب سے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ سال 2025 میں 7 لاکھ سے زائد پاکستانی ایسے ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 18,352 اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں نرسز ہیں، جس میں ہمارے اساتذہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو باورچی ہیں، ڈرائیور ہیں، پلمبر ہیں، یا پھر کسی بھی اور اسکل کے جو ماہر ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. اسی پہ بات کریں گے. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نسیم صاحب، پاکستان کے حالات مسلسل نوجوانوں کو مایوس کرتے جا رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر اپنے مستقبل کو سہانا بنا رہے ہیں. ہاں، بات آپ بالکل درست کر رہی ہیں کہ پاکستان کے حالات اگر دیکھا جائے تو مایوس کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے صرف اور صرف کہ ہم ابھی تک سٹرگل کے اور اس کے ہی موڈ میں ہیں. ابھی تک ہم اس موڈ پہ آئے نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس موڈ پہ آئی نہیں کہ آپ کو یہ نوجوان کو یقین دلایا جائے کہ اب آپ کا فیوچر برائٹ ہے. ہمیں آئی ایم ایف اور ادھر ادھر سے 2-4 چیزیں ایسی آ رہی ہیں، ہمارے جو بہت سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ورلڈ بینک اور دوسری چیزوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ پینک ہے، ٹھیک، وہ پریشان ہے. جو ابھی آپ نے بات کی، جیسے یہ بیورو آف امیگریشن کے مطابق 2025 میں 7,62,499 پاکستانی جو بیرون ملک کے ہیں، ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر وہ انگوٹھا چھاپ ڈرائیور بھی ہیں، بالکل ہر لیول کا مزدور بھی ہے، ہر لیول کا بندہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی پہلے یہ اعداد و شمار ناظرین سے ہم شیئر کر لیں. جی جی تو ضرور پھر اس کے بتائیے. بعد میں آپ کو میں آپ کو اجازت تھینک یو. اچھا جی، بیورو آف امیگریشن کے مطابق نا 2025 میں 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک جو ہے نا ملازمت کے لیے گئے. بالکل. اور جبکہ سال 2024 میں 7,27,381 پاکستانی بیرون ملک گئے تھے. دستاویز کے مطابق جو اس وقت میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے، 2025 میں 5,659 اکاؤنٹنٹ. اب میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی فیلڈ سے لوگ ہیں. 10,503 باورچی، 3,795 ڈاکٹرز جو MBBS ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں پہ، جو ماسٹرز کر رہے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہمارے نزدیک میں یہی ہے. اچھا، 5,996 انجینئرز جو بیرون ملک جا چکے ہیں، اور 2025 میں 1,640 نرسز، 1,725 اساتذہ، 1,63,718 ڈرائیور. یہ وہ ڈیٹا ہے جنہوں نے یہاں سے ہمارا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا. ٹھیک. اچھا، یہ ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا، پھر 6,475 الیکٹریشین جن کے پاس الیکٹریشین کا ڈپلوما تھا، وہ ڈگری تھی، کوئی ایسوسیٹ ڈگری تھی، جو بھی تھی. اچھا، اور اسی طرح جو ہے 4,65,138 مزدور وزن اٹھانے والے، ویٹ اٹھانے والے، یہ جو سارے اس ٹائپ کے لوگ، ٹھیک ہے. اور 5,700 مستری وہ جن کو کام آتا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن میں اینٹ کیسے لگانی ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے ناظرین. جی بالکل. اچھا، اسی طرح 12,703 الیکٹریشنز.
टेक्नीशियंस कुरैशी साहब, सर मुख्तलिफ किस्म के जो बिल्कुल, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, असातिज़ा की बात करें, नर्सेस की बात करें, या फिर हम अपनी जो दीगर अफरादी कुव्वत है जिनमें कोई ना कोई स्किल्स है, या फिर वैसे जो बेचारे मजदूरी करते हैं, क्यों सर ये इतना आसान हो गया है और क्यों लोग मुसलसल पाकिस्तान से जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं जबकि हुकूमतें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में तो खुशहाली आ रही है, महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, फिर लोग क्यों जाते जा रहे हैं सर यहाँ से? बड़ा प्यारा सवाल है आपका और बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो आ रही है, हमारे यहाँ पे फौरी तौर पे कोई कानून लाया जाता है, कोई प्रपोजल लाई जाती है, कोई आइडिया दिया जाता है, उसको फौरी तौर पे नाफिज करने की कोशिश की जाती है। ठीक। अखबारात में ऐड के जरिए, कमर्शियल ऐड के जरिए, अब सोशल मीडिया आ गया। लेकिन जिन लोगों के लिए वो चीजें लाई जाती हैं उनको आगाही नहीं दी जाती। ठीक। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर बड़ा आसान है। हमारी गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, आप लगा, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात। ठीक। ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें ला रही हैं, बहुत सारी चीजों पे मुझे इतराज भी है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें ला रही हैं जो हमारे नौजवानों के लिए, हमारी यूथ के लिए फायदामंद है। लेकिन खराबी कहाँ पे है? खराबी ये है कि जनाब इतने लैपटॉप दे देने हैं, इतने हमने कर्जे दे देने हैं, हमने ये कर देना है, अप्लाई करें, घर जनाब फौरी तौर पे अप्लाई करें। तो यकीन करो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग राब्ता करते हैं कि सर ये अभी जो आशाना जो घर दिया गया है, जी जी तो मैं तरीका बताएं, वो तरीका क्या है? तो पता चलता है वो तो दिए जा चुके हैं। सही, वो दिए जा चुके हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें कैसे लेना है। हमारे यहाँ पे खराबी ये हो रही है, ये पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, जो हमारा नौजवान यूथ, आपको पता है लाखों रुपए लगते हैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल के एक स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे वो डिग्री लेता है, जो टॉपर होता है वो बैरून मुल्क जा रहा है, टॉपर जो बैरून मुल्क जा रहा है। मैं आपको एक डाटा थोड़ा सा बताता हूँ। 2005 से पहले, 2000 से पहले, 99 से 20 से पहले जो यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, चाहे सोशल साइंसेज हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे क्या कहते हैं बिहेवियर साइंसेज हो, चाहे ये जो है डिग्री, जो बिजनेस की डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, उसके टॉपर होते थे ना, जो टॉपर नौजवान, वो सीएसएस करते थे, वो सीएसएस में आया करते थे, वो कंपटीशन के एग्जाम देते थे, उस ज्यादातर टॉपर वही आते थे। मुझे इस तरीके से याद है कि मेरे एक दोस्त हसन नसीम अफजल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जी, वो ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपर थे और सीएसएस का एग्जाम दिया और सीएसएस में दूसरे नंबर पे आए। अब क्या हुआ, 2000 के बाद जितने हमारे टॉपर हैं यूनिवर्सिटीज के, उनको बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज उनको फौरी तौर पे ऑफर कर देती हैं, फुल ब्राइट उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं। हमारे वो टॉपर जितने भी हैं वो टॉपर बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो सर जब हमने लिफ्ट नहीं करानी अपने जो मैंने डाटा पढ़ा है, अक्लमंद लोगों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को, अपने जो ये क्रीम पीपल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जब हमने इनको लिफ्ट नहीं करानी सर, कोई तो उन्होंने रास्ता देखना ही है ना। और फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का हाल है, जो रुपया का हाल है, इवन के मजदूर यहाँ पर महीना काम करता है तो उसको जो गवर्नमेंट बताती है 40,000 रुपये, खैर उसको वो भी नहीं मिलती, 20-25 हज़ार रुपये भी मजदूर को बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो सर वो बाहर जाके वही 1 लाख 1.5-2 लाख रुपए आराम से कमा रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में चला जाए या कहीं और निकल जाए। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। आप ये देखें यहाँ पे ये बहस, अब वो बात हमारी कट गई, लेकिन टाइम हुआ तो मैं दोबारा इसको शुरू करूँगा। जी जी। लेकिन आपने बड़ी अहम बात कर दी है, 20-25 हज़ार रुपये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, फेडरल में मिनिमम सैलरी जो है 37,000 जी या 40 तक है। बल्कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं लाहौर में, अब तो अथॉरिटी बन गई, उनमें तो इल्जाम है उनके काम करने वालों का कि हमें 22-23-24 हज़ार मिलता है। सर मेट्रो के मुलाजिमीन को मिलता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी, कोई सुपरवाइजर या फिर कोई और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स को तो 18,000 15,000 मिल रहा है। बिल्कुल मिलता है।
मिल रहा है, और वो क्या खाएगा, क्या घर में क्या लेके जाएगा। अभी एक यूनिवर्सिटी का एक इशू आया था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, जी जी, उसका एक पहले अवैस बच्चा था, उसके ऊपर आया, फिर उसके बाद दूसरा आया। तो वहां पे एक चीज समझने वाली बात है, इशू जो भी निकला, लड़की का जो भी इशू निकला, लेकिन सबसे बड़ा एक इशू ये चल रहा है, हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, या फिर क्या कहते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, या फिर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, या एजुकेशन यूनिवर्सिटी, सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी, भावलपुर की यूनिवर्सिटी जो है, इनके भी जो सेमेस्टर की जो फीसें हैं, आप सुन के हैरान रह जाओगे, ठीक, वो 30+ है। और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है उनका तो 80K, 90K, 100K, बिल्कुल 120K नसीम कुरैशी पर साहब, सेमेस्टर फीस सर है। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आ गया है। जब कोई भी बच्चा एजुकेशन लेकर 16 साल की पूरी करता है, ऑब्वियसली उसके जो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना पेट काटते हैं तो ही बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों पे बहुत बड़ा एक सोशल प्रेशर भी होता है कि उन्होंने, अब ये सब कुछ वालिदैन ऑब्वियसली उम्मीदें बांधते हैं कि इन्होंने हमें ये सब वापस करना है। पाकिस्तान में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आता, उनको नहीं नज़र आता कि जितनी हमने मेहनत की है, जितनी हमारे पेरेंट्स ने हम पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, हम वो उनको किस तरह से लौटाएंगे, तो फिर वो दूसरे ममालिक जाने के लिए कोशिशें करते हैं। वो बाय हुक और बाय क्रूक अगर होता है। आप बहुत इजाजत सारे दें, लोग, एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड सर बात प्रोग्राम करूं, का वक्त एक सेकंड खत्म हो बात गया है, करूं। मुझे इसलिए आपसे इजाज़त लेना होगी। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर कंप्लीट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग तो बैरून मुल्क पहुँच जाते हैं अपने मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन कई हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे 2 नंबर एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं, जो कि डंकी लगाते हैं और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आते। ये भी हमने कई वाक़यात देखे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।